Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you are fine. I'll teach Math 6 chapter number 9 ratio, rate, time and speed. Exercise number 9a, question number 1, simplify each of the following ratio. First of all we discuss ratio. Ratio is represented by double dot and it is the comparison of between two same commodities or two same units. रेशो को जब भी सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास यूनिट सेम होने चाहिए. इन पार्ट ए 1.5 kg रेशो 350 grams. kg and grams are different unit. kg is bigger, smaller is gram is smaller value. ये इसके डबल केस होता है कि या तो स्मॉलर वैल्यू को केजी में कन्वर्ट कर लें या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें. इसके लिए है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स. अब अगर 350 को केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, और अगर केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे, तो हमारे पास यूनिट सेम आ जाएंगे. फॉर दिस सोल्यूशन आई विल मल्टीप्लाइड 1.5 बाय 1000 टू कन्वर्ट इट kg into grams. 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 रेशो 350 ग्राम्स. अब जब इनको सॉल्व किया तो 1500 ग्राम्स रेशो 350 ग्राम्स. ग्राम्स और ग्राम सेम यूनिट हो गए, सो दीज आर कैंसल्ड, 0 0 also cancelled and 150 ratio 35 is there. It must be simplified. So 150 divided by 5 we got 30, 35 divided by 5 we got 7. So it's 30 and 7 are simplest value, so it is answer. Next part B, 15 over 24 ratio 9 over 7. First of all there is denominator must be removed, so we'll take the LCM of 24 and 7. We got the LCM is 168, so 168 is multiplied by on both sides 24 divided by 168 divided by 24 and multiplied by 15 we got 105. Similarly 168 divided by 7 and multiplied by 9 we got 250. Both values are divisible by 3, so we got 105 divided by 3 we got 35. 260 divided by 3 we got 72. 35 and 72 are simplest values. In part C 0.45 रेशो 0.85. स्टूडेंट्स डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम 0.45 या 0.85 नहीं कहेंगे, हम इनको सेपरेट प्रोनाउंस करते हैं. अब चूँकि ये बोथ आर लाइक टर्म, सो वी आर मल्टीप्लाइड बाय 100. 45 रेशो 85 इज देयर. Both values are divisible by 5, so we got 9 when 45 divided by 5. We got 17 when 85 divided by 5. In part D 580 ml ratio 1.12 liter रेशो 104 ml. यहाँ पे दो डिफरेंट यूनिट यूज हो रहे हैं, ml एंड लीटर. सो वी कन्वर्ट लीटर इनटू ml. So I'll multiply 1 liter has 1000 milliliter. So multiplied 1.12 is multiplied by 1000 and it is converted into milliliter. Now the three values have the same unit. So 580 ratio 1120 ratio 104. Now this value is divisible by 4, so we got 145 when 580 divided by 4. We got 280 when 1120 divided by 4. We got 26 when 104 divided by 4. In part E 2 over 3 ratio 3 over 2 ratio 5 over 8. 8, 2 and 3 are denominator. When we will take the LCM is 24. So 24 is multiplied by each value. When 24 divided by 3 we got 8, so 2 multiplied by 8 we got 16. For next 24 divided by 2 we got 12, so 12 multiplied by 3 is 36 is answer.
Similarly, 24 divided by 8, we got 3. 3 multiplied by 5, the answer is 15. 16 ratio 36 ratio 15. Now these are the simplest form. In part F, 0.33 ratio, 0.63 ratio, 1.8. These three values are not like them, क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट है फर्स्ट वैल्यू में, दो ही डिजिट हैं डेसिमल के बाद सेकंड वैल्यू में, बट थर्ड वैल्यू में डेसिमल के बाद ओनली सिंगल वैल्यू इज देयर, सो दीज आर नॉट लाइक टर्म एंड वी आर मल्टीप्लाइड बाय all these values by 100. When we multiplied by 0.33 by 100, we got 33. 0.63 multiplied by 100, 63 we got. 1.8 multiplied by 100, we got 180. These three values are divisible by 3, so we divided all these values by 3. We got 11, 21 and 60. Question number 2. Find the value of A ratio 400 is equal to 6 ratio 25. अब इक्वेशन के एक साइड पे जो रेशो का साइन है हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में, यानी रेशो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, रेशो के बाद जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाती है. सो A रेशो 400 जो है वो कन्वर्ट हो गया A ओवर 400 एंड 6 रेशो 25 कन्वर्टेड इनटू 6 ओवर 25. अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन के इस साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वेशन के उधर चला जाएगा और उधर का डिनोमिनेटर जो है वो इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. सो 25A इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 400. अब A क्या, 6 को जब हमने 400 से मल्टीप्लाई किया वो गॉट 2400. तो A इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 25, वी गॉट 96. सो A इज इक्वल टू 96. दैट इज Part B, given that 5B ratio 8 is equal to 2 ratio 5. Find the value of B. B is unknown value. For this solution, we again convert ratio into fraction. 5B over 8. Similarly, 2 over 5. Cross multiplication is there. 5 is shifted left side and it becomes 5B multiplied by 5. And 8 is shifted to right side, so 2 multiplied by 8. 5 5s are 25B and 2 8s are 16. And B के साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा. 16 ओवर 25 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती. सो B इज इक्वल टू 16 ओवर 25. दैट in question number 3, given that 2x over 5 is equal to 3y over 8, find the ratio of x ratio y. 2x over 5 is equal to 3y over 8. By cross multiplication, denominator are shifted to other sides. So 2x multiplied by 8 is equal to 3y multiplied by 5. 2 8s are 16x and 3 5s are 15y. Again cross multiply, y shifted on left side at 16 which is multiplied by x, that is shifted on the other side and it become division. So x over y is equal to 15 over 16. So x ratio y is 15 ratio 16. Exercise number 9B, question number 1. A typist types 1800 words in 1 hour. Find the numbers of words that she can type per minute. Solution. We know that 1 hour has 60 minutes. Number of words she can type per minute, 1800 divided by 60, now 30 words. So she types 30 words per minute. In part B, if $120.99 is charged for 650 units of electricity used, find the cost of 1 unit of electricity. For the solution, we'll divide these two values and got the answer. The cost of 1 unit of electricity is $120.99 divided by 658 and the answer is $0.19. In part C, a man pays a total of $4,800 in flat rental for 3 months. Find his money
हिज फाइंड हिज मंथली रेंटल रेट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट है उसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। द आंसर विल बी दैट हिज मंथली रेंट इज $4800 डिवाइडेड बाय 3, द आंसर इज $1600। In part D, if the mass of a metal bar which is 3.25 meter long is 15 kg, find its mass per meter. kg is bigger value, meter is smaller value, और kg को जब हम उसमें कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमने पिछले लेसन में किया था। फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, mass per meter 15/3.25 is equal to 15 multiplied by 100 divided by 325। ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 100 आया है। जब हमने 3.25 का डेसिमल रिमूव किया तो 100 ये ऊपर आ गया और डिनोमिनेटर में 3.25 कन्वर्ट हो गया 320। तो 1500/325 वी गॉट 60/13। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अब हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। तो ये आ जाएगा 4 होल नंबर 8/13 kg पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, इथेन कैन ब्लो 15 बैलून्स इन 20 मिनट्स। जॉन वे can blow 18 balloons in 25 minutes and Vishal can blow 16 balloons in 21 minutes. Assuming that all balloons are blown to the same size, who can blow balloons at the faster rate? For the solution, time taken for ethane blow one balloon is 20/15, यानी time divided by number of balloons, that is equal to 1.33 minutes. Time taken to John Ware blow one balloon is equal to 25/18. The answer is 1.38 minutes. Similarly, time taken for Vishal blow one balloon 21/16. The answer is 1.31 minutes. 133 minutes, 1.38 minutes, 1.31 minutes. So smaller value is 1.31. Thus, Vishal can blow balloons at the faster rate. Question number 3. For each ornament that a worker makes, he is paid $1.15. He makes 4 ornaments every 15 minutes. Find the amount earned by the worker if he works for 3 hours. Solution: 3 hours means 3 multiplied by 60. It is convert into minutes, that is 180 minutes. Number of ornaments made in 3 hours is equal to 180 multiplied by 4, क्योंकि 4 ornaments थे, divided by 15. The answer is 48. Amount earned by the worker 48 multiplied by $1.15. The answer is $55.20. Exercise number C, question number 1. Convert the following time to 24 clock notation. स्टूडेंट्स, 2 किस्म की नोटेशंस होती हैं टाइम के लिए। एक 24 जो कि 24 आवर क्लॉक नोटेशन जो कि इंटरनेशनली यूज़ होती है, और एक है 12 आवर नोटेशन और जो कि पाकिस्तान में हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो AM का टाइम है वो 24 आवर क्लॉक में भी वही टाइम होता है, लेकिन उसके साथ हम AM या PM का वर्ड यूज़ नहीं करते। लेकिन 12 आवर टाइमिंग में हम AM और PM यूज़ कर रहे होते हैं। AM जो है वो हमें मॉर्निंग शो कर रहा होता है, PM जो है वो हमें नाइट के लिए या इवनिंग के लिए टाइम शो हो रहा है। अब पार्ट A 8 AM, तो इसका मतलब यह है कि हम AM हटा देंगे तो हमारे पास यही टाइम 24 आवर में भी यही होगा। तो 8, अब मैंने इसके लिए 0 पहले लगा दिया, अगर ना भी लगाया जाए तो दैट इज़ गुड, एक्सेप्टेबल है। तो 8 और मैंने डेसिमल भी रिमूव कर दिया क्योंकि बुक में इसको यूज़ नहीं किया, अगर लगा भी देते हो तो फिर भी ठीक है। तो 800 दैट इज़ इन 24 आवर क्लॉक नोटेशन। In part B 9.42 PM
अब ये PM दैट्स मीन ये इवनिंग टाइमिंग है, और आफ्टर 13 आवर्स, 13, 14, 15, 16, 12 के बाद, आफ्टरनून के 12 के बाद 1, 2, 3 सिर्फ पाकिस्तान में यूज़ हो रहा था। तो अब हमने 9.42 को जब हमने 24 आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 12 में प्लस कर लेंगे। जब हमने प्लस करते हैं तो हमारे पास जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जैसे 942 को 1200 में प्लस किया तो हमारे पास 2142 आया। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो सोल्यूशन इसका ये होगा, इसके आगे कोई हमने PM या AM नहीं रखना। यही इन पार्ट सी मिडनाइट, तो मिडनाइट 00 होती है। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने 31st नाइट दिसंबर जो होता है, उसमें जब 31 दिसंबर जो है वो जनवरी में कन्वर्ट होता है, तो जैसे 000 TV पे या स्क्रीन पे आता है, तो साथ ही 1 जनवरी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मिडनाइट जो है वो 000 को रिप्रेजेंट कर रहा था। पार्ट डी 2.42 AM। अब AM है, AM को रिमूव कर देंगे और हमारे पास यही टाइम सेम आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 9D, क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल travels 24.6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट्स मीन 30 डिवाइडेड बाय 60। अब ये मिनट्स जो है वो आर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सिंप्लीफाई जब हमने किया तो 1/2 आवर्स। स्पीड ऑफ अ पार्टिकल 24.6 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी फ्रैक्शन जो है उसके नीचे भी डिनोमिनेटर जो है ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो जब हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। तो 24.6 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, इट मीन्स 24.6 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आंसर इज 49.2 किलोमीटर पर आवर। When this convert into मीटर पर सेकेंड, तो 24.6 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो इट बिकम 24,600 मीटर। 30 मिनट्स कन्वर्ट इनटू सेकेंड, सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट इज 1800 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो क्या होता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो 24,600 डिवाइडेड बाय 1800, इट नाउ द क्या यूनिट बन गई, मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट इज सिंप्लीफाई, 0 कैंसिल हो गए, तो 246 डिवाइडेड बाय 18। व्हेन 246 डिवाइडेड बाय 18, द आंसर इज 13 होल नंबर 2/3, द यूनिट इज मीटर। Question number 2, a high-speed train travels at a speed of 200 km per hour. If the train sets off from station A at 12:24 and reaches station B at 14:12, find the distance between the two stations, giving your answer in meters. अब हमारे पास क्या है, किलोमीटर में है डिस्टेंस। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 200 को तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, इट बिकम 2 लाख मीटर। क्लियर। अब टाइम हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम है, तो एंडिंग टाइम में से हम स्टार्टिंग टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा कि कितनी टाइम के लिए ट्रैवलिंग हुई है। अब 14:12 में से 12:42 निकालते हैं, तो 14 और 12 आवर्स को शो कर रहे हैं, 12 और 42 जो है ये मिनट्स को शो कर रहे हैं। 12 मिनट्स में से 42 मिनट्स माइनस नहीं हो सकते, तो अब हमें इसके लिए बोरो करना पड़ेगा। 14 में से जब हम एक बोरो करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 13, लेकिन आम जब हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम 10 बोरो करते हैं, लेकिन ये चूँकि टाइम है आर और 6 मिनट्स जो है वो 16 का डिफरेंस है, इसलिए हम उधर से जो बोरो करेंगे वो 60 होगा। 60 और 12 मिलके बन के 72 मिनट्स में से 42 मिनट्स माइनस किए तो आंसर इज़ 48। अब 13 आवर्स में से 12 आवर्स हमने माइनस किए तो 1 आ गया।
इट मीन्स 1 hour 48 minutes। अब हमें सेम यूनिट करना है तो 48 को भी आर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब 48 को आर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। तो 1 आर प्लस 48/16 आर इज इक्वल टू 1 आर 0.8 आर। अब इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.8 आर। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, अब 2 lakh मल्टीप्लाइड बाय 1.8, द आंसर इज 36, ठीक है, 0000 मीटर।